Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in our last class we have started the rotational symmetry concept and today we'll be practicing some questions based upon that particular exercise 14.2. Let's start with the first question, students. What is the first question of that particular exercise? That is, which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? So basically we have to tell which of the following figure has the rotational symmetry of order more than 1, that is 2, 3 and so on. Right students? Have a look at this particular diagram, students. This figure has a rotational symmetry of about 1, 2, 3, 4. Order 4. Alright students, order is 4. How students? Have a look. For example, this is the figure, right? In this particular figure, students, this is the portion that I am indicating as, right? This is the portion that I am indicating, right? When I am rotating it in this way by 90 degree, what will happen? It will come here, right? This point will come here, right students? Now, it will be like that. Now we have to take a turn by 90 degree in this way, right? What will happen then? The figure will turn out to be here. And students, now if I am going to rotate it here by 90 degree, what will happen? This will be like this, okay? Now have a look students, this when I am going to rotate further by 90 degree, like in this way, then it will be like here, right students? Start भी हम यहाँ से हुए थे, end भी हम यहाँ पे हुए हैं, ठीक है? कितने? 1, 2, 3 and 4. ये तो already जो था वही आया ना, so it means the order of symmetry, rotational symmetry is 4 here. Alright students, so this is your answer. Looking at the next part students, what is that? This triangle, right students? Have a look. Now students, if I am considering this tip as first, okay, then if I am going to rotate it by the order of 360 degree divided by 3, that is 120 degree. अगर मैं इसको 120 डिग्री पे रोटेट करती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये वर्टिसेस, ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स फर्दर मैं अगर इसको 120 डिग्री पे रोटेट करती हूँ, देन ये कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स? बताइए. इट विल कम हियर. एंड अब अगर फर्दर मैं इसको 120 डिग्री पे रोटेट करती हूँ, तो अब ये वर्टिसेस कहाँ आ जाएगा? इट विल कम हियर, राइट स्टूडेंट्स. तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर फर्दर यहाँ पे पहुँच गया. तो मतलब कितने 120 डिग्रीज हुए? 1, 2 and 3. 3 rotations. That is, the order of this particular diagram will be 3. Alright students, the order will be 3. The next question students, have a look this. Now students, this question it will be of order 1 only. क्योंकि ये सेम सिमेट्री कब गैदर करेगा? जब ये 360 डिग्री पे टर्न लेगा, ठीक है? 360 डिग्री पे जब टर्न लेगा तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी ये सेम रहेगा, ठीक है? This is the order, that is order 1, right students? Looking at the next question, this particular question. For example, if I am considering this question as this, अगर मैं अब इसको 180 डिग्री का टर्न देती हूँ, ठीक है, तो अभी कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? अब ये चीज़ कहाँ जाएगी? 180 डिग्री का टर्न देने के बाद, ठीक है, कहाँ आएगी बताइए? इट विल बी हियर, ठीक है. वापस से कहाँ जाएगी? अगर मैंने इसको टर्न दिया तो फिर ये कहाँ आएगी बताओ? हैव अ लुक स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अगर मैंने इसको 180 डिग्री का टर्न दिया तो फिर ये चीज़ कुछ इस टाइप में आएगी, ठीक है. तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2, ठीक है स्टूडेंट्स. लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है वो? ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं इस टिप को फर्स्ट लेके चल रही हूँ, तो इसको अगर मैं 120 डिग्री पे करूँगी रोटेट, तो ये क्या आएगा? तो ये टिप यहाँ पे आ जाएगी. फिर इसको अगर मैंने फर्दर 120 डिग्री पे रोटेट किया, फिर ये क्या आएगा? ठीक है, इधर की जगह ये इधर आ जाएगा, ठीक है. अब फिर अगर मैंने इसको 120 डिग्री पे रोटेट किया, फिर ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, ठीक है. स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इधर से, ठीक है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगेन द सेम थिंग.
सेम चीज़ को हम 2 बार काउंट नहीं करते, उसको हम सिर्फ 1 बार काउंट करते हैं. सो ऑर्डर विल बी 1 2 3 या फिर 1 2 3. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3. मोर देन 1 है, ठीक है. दिस इज द आंसर. लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या है वो? एफ पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 90 डिग्री पे टिल्ट करती हूँ, इसको अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो स्टूडेंट्स देखो, ठीक है. अब ये चीज़ कहाँ जाएगी 90 डिग्री के बाद, मतलब इधर हो गया ना 90 डिग्री, तो ये ऐसे आया. फिर अगर मैं यहाँ पे आ गया, अब इसको 90 डिग्री पे लेके जाऊँ फर्दर, तो ये फिर क्या बनेगा? ठीक है. अब यहाँ से ये चीज़ यहाँ जाएगी, ठीक है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर फर्दर मैं इस चीज़ को 90 डिग्री पे लेके जाती हूँ, तो फिर ये क्या आएगा? देखो, ठीक है. अब ये यहाँ वाला पॉइंट किधर आ गया? इधर, ठीक है. 90 डिग्री पे आ गया. अब फिर इसको मैं 90 डिग्री पे यहाँ पे टर्न लेके जाऊँ, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ठीक है ना. अब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है. हैव अ लुक स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहीं तक पहुँच गए हम. तो कितने टर्न्स हुए? 1 2 3 एंड 4. 4 90 डिग्री के टर्न्स हो रहे हैं. तो ऑर्डर क्या रहेगा स्टूडेंट्स इसका? द ऑर्डर विल बी 4. Right, and this is the solution. Looking at the next question students, question number 2, give the order of rotational symmetry for each figure. अब हमें हर फिगर के लिए order of rotational symmetry बताना है, ठीक है students. अब यहाँ देखिए, this is like this way, ठीक है. ये इस टाइप में है ना. अगर स्टूडेंट्स इसको मैं 180 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करी फॉर एग्जाम्पल, और इसको 180 टर्न दे रही हूँ, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर वे, इस डायरेक्शन में इसको 180 टर्न दूंगी ना स्टूडेंट्स, तो ये फिर से क्या आ जाएगा? ठीक है. अब यहाँ वाली जो चीज़ थी ना, वो इधर आ जाएगी, ठीक है. ये पकड़ के अगर मैं इसको लेके जाऊंगी, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाली चीज़ उधर पहुँच जाएगी. तो ऑर्डर क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका? 2. ठीक है. द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज 2. नाउ स्टूडेंट्स, दिस बी पार्ट. अब बी पार्ट का ऑर्डर क्या आता है, हमें ये देखना है, ठीक है. हैव अ लुक स्टूडेंट्स, इसको अब मैंने क्या किया? 90 डिग्री का टर्न दिया. सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है. इसको 90 डिग्री का टर्न देना है हमें, ठीक है. ये पहुंच जाएगा इधर, ठीक है. कहाँ पहुंच जाएगा? और ये 80 डिग्री रहेगा, ठीक है. फिर अगर मेरे को फर्दर इसको 90 डिग्री का टर्न देना है, तो ये कहाँ पहुंचेगा? इधर. ये 80 डिग्री रहेगा. फिर अगर मुझे 90 डिग्री का टर्न देना है, तो फिर ये कहाँ रहेगा? इधर. तो फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा, ठीक है. 80 डिग्री रहेगा ये. फिर अगर इसको मेरे को 90 डिग्री का टर्न देना है, तो इसको इधर करना है, तो इधर यहाँ पे अब कहाँ पहुँच जाएगा? ये फर्दर इधर. तो कितने 90 डिग्री के टर्न्स होते हैं स्टूडेंट्स? हैव अ लुक. 1 2 3 एंड 4. राइट. ऑर्डर बी 4. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट. लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए अब इसका सी पार्ट बताना है आपको कि इसके अंदर कितना ऑर्डर रहेगा. ये फर्स्ट था. अब अगर मैंने इसको 120 डिग्री का रोटेशन दिया स्टूडेंट्स, तो ये क्या बना? ठीक है. ये यहाँ आ गया पॉइंट. फिर अब अगर स्टूडेंट्स मैंने इसको यहाँ से 120 डिग्री का टर्न दिया, ठीक है, फिर ये क्या हुआ? ये इधर आ गया, ठीक है. ऑलराइट. अब इसको मैंने अगर यहाँ से 120 डिग्री का टर्न दिया, तो ये अब फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है. अब देखो, यहाँ से स्टार्ट हुए थे और पहुँचते पहुँचते यहाँ तक आ गए. तो कितने टर्न्स लिए स्टूडेंट्स हमने? 1 2 3. सो ऑर्डर क्या है इसका? 3. राइट स्टूडेंट्स. लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने टर्न्स लेने हैं ये देखो. नाउ अब देखिए, इधर से स्टार्ट करते हैं. 90 डिग्री का टर्न लो आप. ठीक है स्टूडेंट्स. और यहाँ से ऐसे, ठीक है. अब यहाँ पे ये था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. ऑलराइट स्टूडेंट्स. और अब फिर से यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न लीजिए आप. ठीक है. अब जो चीज़ यहाँ पे थी, अब ये कहाँ आ गई? इधर आ गई, ठीक है.
फर्दर स्टूडेंट्स आप क्या लोगे, 90 डिग्री का टर्न लोगे। अब क्या होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे चीज थी, अब ये कहाँ आ गई, इधर आ गई। फर्दर स्टूडेंट्स आप 90 डिग्री का टर्न लेंगे ना, तो क्या बनेगा ये, ठीक है। अब ये चीज यहाँ थी, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब कितने 90 डिग्री के टर्न्स लिए, देखो 1 2 3 and 4, सो ऑर्डर विल बी 4 स्टूडेंट्स। कितने ऑर्डर है, देयर आर टोटल 4 ऑर्डर्स। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब क्या है ये, पार्ट ई। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक। सपोज मैं स्टार्ट करी हूँ इस पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पे ये डॉट है, राइट। इसको अगर मैं 90 डिग्री का रोटेशन देती हूँ, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, कैसे बनेगा, मतलब ये पॉइंट अब इधर आ गया, ठीक है। फिर इसको मैं 90 डिग्री के ऊपर रोटेशन देती हूँ, तो फिर ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या बनेगा ये ध्यान दो, अब यहाँ पे ये बन जाएगा, ये डॉट इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैंने इसको 90 डिग्री का रोटेशन दिया, फिर ये कहाँ बना, ठीक है। अब ये फिलहाल इधर था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 90 डिग्री का रोटेशन देने के बाद। अब अगर फिर मैंने इसको 90 डिग्री का रोटेशन दिया स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ जाएगा, देखो ये यहाँ से 90 डिग्री पे रोटेट कराने के बाद इधर चला जाएगा। तो कितने ऑर्डर्स होंगे स्टूडेंट्स, कितनी बार ये एग्जैक्टली सेम दिखेगा, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद नंबर 1 टाइम, देन नंबर 2 टाइम, 3 टाइम, 4th टाइम, ठीक है। 4 बार ये एग्जैक्टली सेम दिखेगा, उसके बाद ये फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जैसे ही ये पहले हुआ करता था। सो द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 4, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब ये पेंटागन है, हमें पता है कि जो भी कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है, जितना उसके पास साइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके पास 5 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा, रोटेशनल सिमेट्री, तो कितना डिग्री का रोटेशन देना पड़ेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, राइट स्टूडेंट्स। कितना आएगा ये बताइए, 72। तो मतलब अगर हम इसको 72 डिग्री पे रोटेट करेंगे ना, तब ये एग्जैक्टली मतलब जो हमें चाहिए रोटेशनल सिमेट्री गैदर करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको हमने 72 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आया। फिर इसको हमने 72 डिग्री पे रोटेट किया, तो फिर ये कहाँ जाएगा, देखो, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा। फिर इसको 72 डिग्री पे रोटेट किया, तो फिर ये कहाँ गया, ठीक है। फिर ये यहाँ से इधर चला गया, राइट स्टूडेंट्स। अब मैंने इसको 72 डिग्री पे रोटेट किया, तो फिर ये कहाँ गया, हैव अ लुक, ये इधर चला गया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद फिर इसको 72 डिग्री पे रोटेट किया, अब ये कहाँ गया स्टूडेंट्स, फिर से वापस से इधर चला गया। तो कितनी बार रोटेशन किया इसका, 1 2 3 4 and 5। सो ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज 5, ठीक है। तो ऑर्डर क्या रहेगा इस फिगर का, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल टर्न आउट टू बी 5, राइट स्टूडेंट्स। लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। अब हम इसको कितनी बार रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है ना, तो 6 टाइम्स रोटेट करेंगे हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको पॉइंटर मतलब टिप लिया और इसको 60 डिग्री पे अगर मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, राइट स्टूडेंट्स। अब इसको फिर 60 डिग्री पे रोटेट किया, फिर ये देखो कहाँ आएगा, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये सेम फिगर लेके ये इधर की बजाय इधर चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर मैंने इसको 60 डिग्री पे यहाँ पे रोटेट किया, फिर ये कैसे जाएगा, अब ये इधर की बजाय ये वाले पोर्शन की बजाय इधर चला गया। फिर 60 डिग्री पे इसको रोटेट किया स्टूडेंट्स हमने, तो फिर ये, ठीक है, फिर ये इधर गया, ठीक है। फिर 60 डिग्री पे रोटेट किया, फिर ये कहाँ गया,
ठीक है, अब ये इधर चला गया, राइट स्टूडेंट्स। ये वाले 60 डिग्री पे जाने के बाद 60 डिग्री पे फिर रोटेट किया तो फिर ये एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो कितना रोटेशन हुआ स्टूडेंट्स इसका, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल टर्न आउट टू बी 6, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ दिस रोटेशनल सिमेट्री इज 6, राइट। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो पार्ट एच है। अब देखो, अब ये डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसके लिए हम इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मार्क करके चल रहे थे, 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे, ठीक है, 120 डिग्री का रोटेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे जब ये जहाँ पे आके रुकेगा, ये कहाँ पे रुकेगा स्टूडेंट्स, ये इधर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। फिर से अगर आप इसको 120 डिग्री पे रोटेट करोगे फर्दर, तो ये कहाँ जाके रुकेगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ जाके रुकेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको फिर से 120 डिग्री पे रोटेट करोगे, ठीक है, तो फिर ये एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ जाएगा जैसे ये पहले हुआ करता था, ठीक है। सो द ऑर्डर विल टर्न आउट टू बी स्टूडेंट्स 3, ऑर्डर विल बी 3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 14.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 14.3 स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू यू ऑल, बाय बाय।